Good morning children, open your new Sparkle semester series Junior KG semester 1 book. Open page number 8. Open page number 8. Yes, now I have completed the capital letters A to Z. A to Z. Everything I have completed. Okay. Nothing is remained from A to Z. Have you all got it? Yes. So now exam will be conducted. The date, the time will be given to you. Okay. The portion also will be given to you. You have to prepare for the exam. So we will read with the help of the picture. Capital A for arrow, A for axe, A for apple, A for apple. B, capital B for ball, B for bell, B for bat. C for cat, C for cake, C for cap. Capital letter D for doll, D for door, D for duck. And this is alphabet review A, B, C, D. Okay, if I ask you to draw, means if I give you like this, say the name of each picture, write the first letter of each picture name. You have to write this B, A, D, C, whatever is given no here, that will be not given. This space will be empty. हे मोकड़ा ये यहाँ पे खाली रहेगा, जगह यहाँ पे खाली रहेगा, तुम्हें फिलअप करना है एग्जाम के लिए अगर मैंने दिया तो. ओके. E for egg, E for engine, E for elephant. So you have to read in series wise, not like that. If you say E for elephant, okay. Parents also do not say anything to the child. Let him read according to their convenient. उनको जैसा सुविधा होता है वो जैसे पढ़ते हैं उनको पढ़ने दो. एग्ज़ाम के समय मैं पेरेंट्स लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कोई बच्चों को प्रॉम्प्ट ना करे, जो बच्चा बोलता है बोलने दो. जब स्कूल स्टार्ट होगा और बच्चे हमारे सामने आएंगे तब तो आप नहीं सामने रह के बोलोगे ना. ओके. सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट ऑल द पेरेंट्स, आप बोलिए. मैं हूँ किस लिए? वो बच्चा जब नहीं पढ़ नहीं पाता है, दैट इज़ माई ड्यूटी. आई विल लुक आफ्टर दैट. तुम अब पढ़ाओ. अब ऑफलाइन हम लोग जब ऑनलाइन रहते हैं कोई बोलने की ज़रूरत नहीं है. जब ऑफलाइन रहते हैं हम लोग, आप पढ़ाओ जितना चाहिए उतना बच्चों को, तो अब थोड़ा समय दो. E for egg, E for engine, E for elephant. Capital letter F for frog, F for fan, F for fish. Capital letter G for gun, G for gum, G for grapes. Capital letter H for hat, H for hut, H for hen. Then this is also alphabet review E, F, G, H. Say the names of each picture, write the first letter of each picture name. The same way. E for elephant, F for fruit, G for goat, H for hut. These letters will not be given, it will be given blank and there you have to write. Okay. Any one I will give. It's not like that this only particular I am going to give. कोई भी मैं दे सकती हूँ. ओके. I for ink pot, I for insects, I for igloo. J for jam, J for joker, J for jug. Capital letter K for key, K for king, K for kite. L for lotus, L for lion, L for leaf. Alphabet review I, J, K, L. Write the missing letters of each picture. Here also missing letter whatever will be given you have to write during exam time. M, capital M for mat,
M for monkey, M for mango, M for mat, M for monkey, M for mango. Capital letter N. N for net, N for nest, N for nail polish. O. Capital O. O for octopus, O for ostrich, O for orange, O for orange. Capital letter P. P for parrot, P for puppy, P for pot. Alphabet review. M N O P, M N O P. Write the beginning letter of the objects whose name begins with the letter M N O P. M M N O P. Okay? Yes. Capital letter Q. Q for queen, Q for quiver, and Q for quill. R. R for radish, R for ring, R for rat, R for rat. S for snail, S for sun, S for seal, S for seal. T. T for table, T for tiger, T for tomato, T for tomato. Then again alphabet review. Q R S T. This is match the letters to the picture. अब हमें मैच करना है इसको. हमने अभी खाली जगह भरा है, अभी इसको मैच करना है. यहाँ पे देखो Q. ओके, अल्फ़ाबेट रिव्यू. Q R S T. ओके, इसको तुम क्या करना है, मैच द लेटर्स टू द पिक्चर्स. अभी तुम्हें इसको मैच करना है. देखो यहाँ पे Q R S T दिया है. ओके, Q R S T. तो हमें Q से क्या करना है, Q से क्विल, क्विल को ऐसा लाइन देना है. उसके बाद है R. R से रैट. S. S से स्टार, S से स्टार. और T से टेबल को ऐसे तुम्हें लाइन देना है. मैच करना है, नहीं इसको ऐसे मैच करना है, मैच करना है. ओके, उसके बाद U. U. कैपिटल U फॉर अर्न, U फॉर umpire, and U for umbrella. U for umbrella. U for umbrella. Then V. Capital V. V for van, V for violin, V for vase, V for vase. Capital letter W. W for watermelon, W for well, and W for whale. W for whale. X. X for fox, X for ox, X for box. Y. Capital letter Y. Y for yacht, Y for yak, Y for yo-yo, Y for yo-yo. Z. Capital letter Z. Z for zero, Z for zip, and Z for zebra. Z for zebra. ये बुक्स में जो भी तुम्हारा पिक्चर्स मैंने कलर करने के लिए बोला है A to Z तक, तुम्हें सबको कलर करना है. अगर नहीं किया है अभी से कंप्लीट कर दो बच्चों. ओके, सो Z for zero, Z for zip, Z for zebra, Z for zebra. अभी देखो अल्फ़ाबेट रिव्यू. U V W X Y Z, Y Z. तो इसको तुम्हें क्या करना है, इसको भी वैसे तुम्हें ड्रॉ अ लाइन टू जॉइन ईच ऑब्जेक्ट टू इट्स नेम. उसके नाम से अनुसार तुम्हें U फॉर तुम्हें पहला लेटर तो आता ही है, तुम्हें वहाँ पे कंसंट्रेट करना है. तुम्हें ये स्पेलिंग आए ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ना आएगा तुम्हें, लेकिन इसको क्या बोलना है मालूम नहीं पड़ेगा. लेकिन जब ऐसे तुम देखोगे U अम्ब्रेला, पिक्चर देख के बोल सकते हो अम्ब्रेला, तो तुम्हें ये अम्ब्रेला को ऐसे लाइन देना है. उसके बाद V से इसको क्या बोलते हैं, V से वैन को तुम्हें ऐसा लाइन देना है. उसके बाद U V W. देखो ये W फॉर वाटरमेलन, तो वाटरमेलन को तुम ऐसे करके लाइन दे के ऐसे लाना है. ओके, W. उसके बाद क्या आता है, W X से बॉक्स. देखो यहाँ पे बॉक्स है, तो तुम्हें ये लाइन को ऐसे करके लाइन देना है. ओके, उसके बाद क्या आता है Y से ये यक है ना,
तो वाई से यक को देना है। उसके बाद तुम्हारा जेड, जेड से क्या है जिप, जिप को तुम्हें ऐसे लाइन दे के देखो ये जिप, बैग का जिप होता है, पैंट का जिप होता है, जिसका पैंट हाफ पैंट होता है उसका जिप होता है, बैग का भी जिप होता है, बड़े बड़े बैग जो होते हैं स्कूल का, ये तो छोटा सा बैग है। ओके, इस तरह से तुम्हें मार्क करना है। और अभी सबको आता है ABCD, पढ़ने के लिए भी आता है। जो भी अल्फ़ाबेट मैं तुम्हें पूछूंगी यू शुड बी रेडी विद दैट अल्फ़ाबेट, विद दैट अल्फ़ाबेट। देखो ABCDEFGHIJKLMNOPQRST UVWXYZ। अब तुम्हें लिखना तो आना ही पड़ेगा बच्चों, क्योंकि अब तुम्हारे A to Z सभी लेटर्स हो गया है ना। अभी सबको तो आना ही पड़ेगा, सबको लिखना पड़ेगा। अभी मेरे बच्चों को सबको अभी A to Z आता है, A to Z तुम्हें अभी लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे डेट डालेंगे 23/9/2021। ओके, कैपिटल लेटर्स तुम्हारा ये 4 लाइन की बुक में मैं दिखा रही हूँ, देखो कैसे लिखना है। कैपिटल लेटर्स A to Z हो गया है अभी, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं A for apple, B for ball, C for cat, D for dog, E for elephant, F for fish, G for grapes, H for hut, I for ink pot, J for jam, K for key, L for lion, M for monkey, N for nest, O for octopus, P for parrot, or what you can say, what is there P for? STQRST. P for parrot, P. Q for queen, R for rat, R. S for seal, T for table, U for umbrella, V for van, W for watermelon, X for fox, Y for yak, Z for zebra. In this way you have to read and write. और देखो मैंने एक बार भी वाइप आउट किया है ना, तुम वाइप आउट कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। मैं भी एक बार रॉन्ग लिख देती हूँ, वाइप आउट कर सकते हो, लेकिन इतना क्लीन चाहिए। जब तुम्हारा हैंड राइटिंग कॉम्पिटिशन रहेगा ना, तुम पूछोगे तो मार्क्स चला जाता है, क्योंकि तुम अब मास्टर हो जाओगे, लिख कर प्रैक्टिस हो जाएगा, तो तुम्हारा रॉन्ग नहीं होगा। ओके, इन दिस वे यू हैव टू राइट, और उसके बाद मैं तुम्हें अभी ABCD तो तुम्हारा हो गया है बच्चों, ABCD तो हो गया है तुम्हारा। ओके, अभी फिल इन द ब्लैंक्स। देखो मैं तुम्हें यहाँ पे दिखाती हूँ, फिल इन द मिसिंग लेटर्स, LETTERS लेटर्स। फिल इन द मिसिंग लेटर्स यानी क्या? देखो अभी मैं यहाँ पे ए दूंगी, यहाँ पे तुम्हें ऐसा डैश दूंगी, ए देकर डैश दूंगी, तो तुम यहाँ पे क्या लिखोगे? बी। वेरी गुड, बी। अब यहाँ पे मैंने सी दिया है, यहाँ पे क्या लिखोगे? डी। यस, डी। यहाँ पे मैंने डी दिया, यहाँ पे डैश दिया, क्या लिखोगे डी के बाद? ई। वेरी गुड बॉयज, ई। ओके, यहाँ पे तुम्हें ई लिखना है, ई के बाद जब मैं तुम्हें यहाँ पे डैश दूंगी, ई के बाद क्या लिखोगे? एफ। ओके, एफ के बाद क्या आता है? एफ जी।
ऐसे नहीं कि ए के बाद बी लिखा है, बी के बाद सी है तो यहाँ पे तुम्हें डी लिखना पड़ेगा। ऐसे सीक्वेंस मैंने ऐसे दिया है तुम्हें। अब जब मैं तुम्हें ऐसे दूंगी, देखो ए डैश बी डैश सी डैश ई डैश, तो तुम ये लिख पाओगे? यस। ए के बाद यहाँ पे क्या आता है? यस, हमने लिख दिया है। हमने ए के बाद लिख दिया है। ए के बाद बी जो है हमने लिख दिया है। यस, वेरी गुड। बी के बाद भी सी लिख दिया है। बी के बाद भी सी लिख दिया है। सी के बाद डी नहीं लिखा है। यहाँ पे तुम्हारा क्या आएगा? सी के बाद डी ई लिखा है। यहाँ पे क्या आएगा? या। वेरी गुड, आ गया ना तुम्हें समझ में? ये मैंने मुद्दाम लिखा है, ए के बाद डैश, ये मुद्दाम लिख के दिया है मैंने। देखो एक्चुअली ये ऐसा आता है, ए के बाद डैश सी, उसके बाद डैश, सी के बाद क्या आता है इधर? ओके, तुम्हें लिखना है। ई के बाद क्या आता है? ए के बाद बी, बी के बाद सी के बाद डी ई एफ, उसके बाद जी एच के बाद आई जी एच, यहाँ पे आई, यहाँ पे तुम्हारा होगा डैश। देखो बच्चों, यहाँ पे ए मैंने मुद्दाम दिया है, मैंने जानबूझ कर दिया है ताकि तुम क्या करोगे। ओके, तो फिर देखो ये ऐसे आएगा। तो ऐसे आने के बाद तुम्हें क्या लिखना है? ए के बाद बी लिखना है। बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, इसको क्या बोलते हैं? फिल इन द मिसिंग लेटर्स। फिल इन द मिसिंग लेटर्स। ओके, मैच द लेटर्स। देखो अब क्या होता है, तब मैंने तुम्हें बताया था मैच द लेटर्स। मैच द लेटर्स यानी क्या होगा बच्चों तुम्हारा? ये देखो यहाँ पे मैं ए दूंगी, ओके, बी सी डी ई हो गया। देखो ई हो गया। ओके, तो यहाँ पे तुम्हारा जो है ई होगा, डी होगा, ए होगा, बी होगा, ओके, और क्या रह गया अब हमारा? सी रह गया। ओके, देखो नाउ दिस ए कहाँ पे है? उसको तुम्हें ऐसे लाइन देना है। दिस इज कॉल्ड मैच द लेटर्स। मैच द लेटर्स। सी कहाँ पे है बच्चों? देखो। डी कहाँ पे है? देखो। ई कहाँ पे? देखो। मज़ा आ गया करने में? यस, वेरी गुड, क्लैप। यस, ऐसे तुम्हें मैच द लेटर्स करना है। आ गया तुम्हारे दिमाग में? बहुत अच्छी तरह तुम लिख पाओगे मेरे बच्चों। फिल इन द ब्लैंक्स भी लिख पाओगे, फिल इन द मिसिंग लेटर्स लिख पाओगे, मैच द लेटर्स भी तुम लिख पाओगे। एग्जाम में अगर मैंने दिया तो पाओगे ना? यस। अगर पिक्चर दिया है तो पिक्चर ड्रॉ किया हुआ होगा, लेटर दिया जाएगा, उसको तुम्हें ज्वाइन करना है पिक्चर्स के साथ। ओके, तो अब तुम्हें मैं एक छोटा सा राइम्स भी लूँगी। राइम्स लेती हूँ। बहुत दिन हुआ हम राइम्स ने नहीं पढ़ा है, राइम्स को हमने नहीं पढ़ा है। यहाँ पे मैं तुम्हें राइम्स बताना चाहती हूँ। वही बुक तुम्हें ओपन करना है राइम्स का, जहाँ पे 46 पेज नंबर। हमने कौन सा राइम को कंप्लीट किया है? प्रेयर कंप्लीट किया है, ABCD का सॉन्ग कंप्लीट किया है, छबी चिक्स किया है, हिकरी डिकरी डक किया है, हॉप लिटिल किया है। अब हम पढ़ेंगे न्यू राइम। 2 राइम पढ़ेंगे आज हम। 2 राइम को पढ़ेंगे। एक का नाम है 1 to बकल माई शू और दूसरे का नाम है इंजिन नंबर 9। इंजिन नंबर 9। Yes, 1 to buckle my shoe. Okay, 1 to buckle my shoe. 1 to buckle my shoe. 3, 4, shut the door. 3, 4, 3, 4, shut the door. 5, 6, pick up the sticks. 5, 6, pick up the sticks. 7, 8, lay them straight. 7, 8, lay them straight.
9, 10. 9, 10. You know the numbers now, 1 to 10 or 1 to 100. Okay. 9, 10, a big fat hen. A big fat hen. 1, 2, buckle my shoe. 1, 2, buckle my shoe. 3, 4, shut the door. 3, 4, shut the door. 5, 6, pick up the sticks. 5, 6, pick up the sticks. 7, 8, lay them straight. 7, 8, lay them straight. 9, 10, a big fat hen. 9, 10, a big fat hen. In this way, you have to learn by heart the rhyme. I will show you with action just after few minutes. Okay, just a minute. I'll read the second one and then I will show you with the action. Engine, engine number 9. Yes, कितने बच्चों ने इंजन को देखा है? इंजन, ट्रेन, ट्रेन. ऐसा इंजन किसके पास है? देखो देखो कितना प्यारा प्यारा इंजन है. ओके, सी हियर. इंजन, इंजन नंबर 9. इंजन का गाना भी हम गाते हैं. तुम्हें भी गाने के लिए सिखाऊंगी. अब तुम भी गा सकते हो. घर के अंदर तुम लोग बैठ के इंजन किसका भी अगर है, ये तो खिलौनों का खिलौना है. किसके पास है इतने ये खिलौना? कितने बच्चों के पास है? मुझे लगता है सभी के पास है. ओके, बोलो. इंजन, इंजन नंबर 9. Engine, engine number 9. When it's ready, it will shine. Engine, engine number 9. When it's ready, it will shine. Engine, engine number 9. When it's ready, it will shine. Engine, engine number 9. Then we will ride on the Mumbai line. Then we will ride on the Mumbai line. Engine, engine number 9. When it's ready, it will shine. Engine, engine number 9. When it's ready, it will shine. Engine, engine number 9. Then we will ride on the Mumbai line. Then we will ride on the Mumbai line. Today I am going to teach you one rhyme, that is 1, 2, buckle my shoe. Okay children? So see here. 1, 2. What you have to do? You have to buckle my shoe means तुम्हारा जो बूट का लेस होता है उसको पकड़ना है. Buckle my shoe. 1, 2. Buckle my shoe. 3, 4. Shut the door. See here. We have to open the door. 3, 4. Shut the door. 3, 4. Shut the door. We have to close the door. We have to close the door. 5, 6. 5, 6. Pick up the sticks. 5, 6. Pick up the sticks. 7, 8. 7, 8. Lay them straight. इसको straight रखना है. Straight. Lay them straight. 9, 10. 9, 10. A big fat hen. 9, 10. 9 and 10. A big fat hen. 1, 2. Buckle my shoe. 3, 4. Shut the door. 5, 6. Pick up the sticks. 7, 8. Lay them straight. 9, 10. A big fat hen. A big fat hen. Okay, understood? Do it. One more I'll tell you, that is engine, engine number 9. Engine, you know, no? I have shown you already. I have shown you the picture. Okay, see here. Engine, engine number 9. Engine, engine, see here. Engine, engine number 9. When it's ready, when you get ready. When it's ready, it will shine. When it's ready, it will shine. Engine, engine number 9. Engine, engine number 9. Then we will ride on the Mumbai line. Then we will ride on the Mumbai line. Engine, engine number 9. Engine, engine number 9. When it's ready, it will shine. When it's ready, it will shine. Engine, engine number 9. Then we will ride on the Mumbai line. Then we will ride on the Mumbai line. Then we will ride on the Mumbai line. Yes, the homework will be whatever I have given you today. A to Z, capital letters,
After that, match the letters and fill in the missing. All you have to write for 2 times. A to Z, 2 pages, and that all 2 times. And you have to learn by heart the 2 rhymes, that is 1 to buckle my shoe, the second is engine number 9. Okay children, with this we will meet in the next video. Thank you and take care.